موٹر وے پر خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کے ملزم کی ڈی این اے رپورٹ فائنل کر دی گئی ہے۔ گینگ ریپ کرنے والا ایک ملزم سیریل ریپسٹ نکلا۔ ملزم کا ڈی این اے بہاول نگر میں ماں اور بیٹی کے ریپ کے دوران فورینزک سائنس لیبارٹری کے ریکارڈ میں موجود تھا۔ پولیس کی جانب سے موٹر وے ریپ کیس کے نمونے فورینزک سائنس لیبارٹری کو بھجوائے گئے، جن کا ڈی این اے میچ ہو گیا۔ ملزم کا ڈی این اے 2013 میں ماں بیٹی کے ساتھ ریپ واقعے کے ڈی این اے سے میچ ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گینگ ریپ میں ملوث بہاول نگر کا رہائشی ملزم عابد ملہی 2013 سے پولیس کو مطلوب ہے۔ فورینزک سائنس لیبارٹری کے ذرائع کے مطابق موٹر وے پر خاتون کے ساتھ ریپ واقعے سے حاصل شدہ 3 نمونوں سے ڈی این اے میچ ہوا۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں ڈی این اے پروفائلنگ کے دوران ملزم کی نشاندہی ہوئی۔ ڈی جی پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی نے ڈی این اے رپورٹ حکومت کو بھجوا دی ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ملزم کی گرفتاری کے لیے راجن پور روانہ ہو چکی ہیں۔ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور اجتماعی کے چوتھے روز پولیس کی تفتیشی ٹیموں کے جائے وقوع کا دورہ کرول گاؤں میں سرچ آپریشن اور گشت کا سلسلہ جاری رہا۔ متعلقہ کیسز میں ریکارڈ یافتہ 3 ملزمان کو پولیس نے تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کے کیس کے چوتھے روز بھی پولیس کی تفتیشی ٹیمیں وقتاً فوقتاً جائے وقوع کا دورہ کرتی رہیں۔ پولیس نے قریبی گاؤں کرول پنڈ میں سی آئی اے اسپیشل برانچ اور متعلقہ تھانے کی پولیس گشت اور سرچ آپریشن کرتی رہیں، جبکہ سفید کٹپور میں ملبوس اہلکار بھی تعینات تھے۔ تھانہ گجرپورہ کے علاقے میں ریپ کیسز میں 5 سالہ ریکارڈ یافتہ ملزمان کو بھی تفتیش میں زیر حراست لینے کی ہدایت کی گئی ہے، جس پر پولیس نے 3 ریکارڈ یافتہ ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے اور پوچھ گچھ جاری ہے، جبکہ گزشتہ روز 50 سے زائد افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے آئندہ چند گھنٹوں میں خاتون سے زیادتی کرنے والے مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، آئی جی پنجاب انعام غنی بھی موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ موٹر وے کیس پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے اراکین نے وزیر اعلیٰ کو اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ذاتی طور پر کیس پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لے رہا ہوں۔ دلخراش واقعے میں ملوث ملزمان سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کمیٹی کو تحقیقات جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر موٹر وے پولیس کی تعیناتی تک پنجاب پولیس فرائض سر انجام دے گی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے 91 کلومیٹر روٹ کو 3 بیٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب پولیس کی ہیلپ لائن 15 پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کی ہیلپ لائن 1124 کو موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پنجاب حکومت اور پوری قوم متاثرہ خاندان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندوہناک واقعے پر ہر پاکستان کا دل زخمی ہے۔ متاثرہ خاتون کو فوری انصاف دلانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس کو اپنا فرض سمجھ کر نبھائے گی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور ایلیٹ فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کو 4 روز گزر گئے۔ سربراہ لاہور پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ 4 روز قبل دل دہلا دینے والا واقعہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پیش آیا۔ واقعے کے بعد وزیر قانون، ہوم سیکرٹری، آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران نے جائے وقوع کا دورہ کیا، لیکن سربراہ لاہور تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی جائے وقوع وزٹ نہیں کیا، البتہ میڈیا پر بیانات دیتے اور تبصرے کرتے نظر آئے۔ اور سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا معاملہ اور اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں خاتون سے زیادتی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں میاں آصف محمود ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، چیف سیکرٹری، آئی جی، چیئرپرسن لاہور روڈ اتھارٹی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سیالکوٹ موٹر وے پر نامعلوم ملزمان نے خاتون کو دوران ڈکیتی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خاتون نے مدد کے لیے متعدد فون کالز کی مگر کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ سی سی پی او عمر شیخ نے خاتون سے زیادتی سے متعلق انتہائی شرمناک بیان دیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ رواں برس جولائی میں سگیاں بائی پاس پر 20 سالہ
लड़की से भी ज्यादती का वाकया पेश आ चुका है। ख्वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली NGOs के मुताबिक 2018 में 2937 ज्यादती के वाकयात पेश आए। 2019 में 3500 से ज्यादा ख्वातीन से ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। रवां बरस के पहले 2 माह के दौरान 73 जिनसी ज्यादती के वाकयात हुए। लाहौर में जिनसी ज्यादती के वाकयात में कमी नहीं आई, जबकि ज्यादती के वाकयात में कम सिन बच्चे मुतासरीन में शामिल हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि खातून से ज्यादती के वाक़े के लिए वफाकी हुकूमत को गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने और 2017 से अब तक होने वाली ज्यादती के वाकयात पर मुल्जिमान के खिलाफ की गई कार्रवाई बारे रिपोर्ट भी तलब की जाए। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कानूनी माहिरीन ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार देते हुए मौजूदा तफ्तीशी निज़ाम को नाकिस करार दे दिया और कानून शहादत में तरमीम और तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर करने का मुतालबा किया है। वकील कहते हैं कि कानून में तरमीम होने तक मुल्जिम सजा से बचते रहेंगे। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस, वकला रहनुमा एहसन भून, आबिद साकी समेत दीगर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मोटरवे पर खातून से ज्यादती को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि खातून से ज्यादती इंतहाई शर्मनाक है, वाकया पूरी कौम के लिए बाइसे शर्म है। बहैसियत कौम हमें गौर करना होगा। CCPO के अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था। बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर कोई भी कमी नहीं की जाएगी। वकील रहनुमा एहसन भून ने कहा कि मौजूदा तफ्तीशी निज़ाम इंतहाई नाकिस है। कानून शहादत समेत दीगर कवानीन में तरमीम करना होगी। तफ्तीश को काबिल अदखाल शहादत बनाया जाना चाहिए। कानून में तरमीम होने तक ज्यादती जैसे जराइम में मुलविस दरिंदे सजा से बचते रहेंगे। हम अखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं और इसके लिए बड़ी डेटरेंट पे टाइम एंड अगेन बार काउंसिल्स ने एहतजाज भी किया और ऐसे कवानीन में तरमीम की भी गुजारिश की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी ने कहा कि ज्यादती वाकया हुकूमत की नाकामी है। बतौर कौम ये वाकया हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी है। हुकूमत पुलिस की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुकी है। इससे पूरी कौम एक नदामत की कैफियत में है और बड़ी खौफ व हरास की कैफियत में भी है, और मैं समझता हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट की नाकामी है और आइन के तहत एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत शहरियों की जान माल की और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की होती है, जो किसी सूरत भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल जमील असगर भट्टी ने कहा कि सानेहे पर पूरी कौम अफसुर्दा है। फिर से बात करते हैं मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मामले पर। मोटरवे पर मुजाहिरीन ने मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा के खवातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने खातून को इंसाफ और मुल्जिमान की सजा के लिए खामोश एहतजाज किया। फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फ़खर, बताएगा इस एहतजाज का अहवाल। जी बिल्कुल, 4 रोज़ कबल होने वाले मोटरवे पर वाक़े के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो सोसाइटी के लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, इसमें आवाज़ उठा रहे हैं। आज मोटरवे पर जो है इस हवाले से ख़ास तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जिसमें सिविल सोसाइटी के मेंबरान और समाजी रहनुमाओं और कारकुनान ने इसमें शिरकत की है। और जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि जो भी इस जुर्म में और इस तरह के जितने भी जराइम हैं उनमें मुलविस मुल्जिमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, और इस केस में जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ़्तार करके ऐसी सज़ा दिलवाई जाए कि वो दूसरों के लिए एक सबक हो और दूसरे जो जराइम पेशा अनासिर हैं वो इस किस्म के जराइम से दूर रहें। और जितने भी इस किस्म के केसेस हैं उनमें कानून साजी की जानी चाहिए ताकि जो है मुल्जिमान को जल्द अज जल्द सज़ा हो, और इसके साथ साथ तमाम तर इस किस्म के जो केसेस हैं वो दोबारा से रोनमा ना हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर आपका। सानिया सियालकोट खातून ज्यादती केस के हवाले से लिबर्टी चौक में औरत मार्च का इनेकाद किया गया है। मर्दों ख्वातीन समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है और मुल्जिमान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। मोहम्मद अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, एहतजाज की सूरत हाल बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर औरत मार्च का सिलसिला जारी है और यहाँ पर ख़वातीन और मर्द की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल वर्कर अरूज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा अरूज, यहाँ पर आज आप देख रही हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन बाहर निकली हैं जो कि अपने हकूक़ के लिए यहाँ पर आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप?
किसी वजह से निकली। एक तो ये कि वजह ये थी कि एक रेप हुआ, और वो सिर्फ एक रेप की वजह नहीं है, हम ज़ैनब से लेके पिछला भी देखते चलें तो रेप तो होते जा रहे हैं, और हम लोगों की बहुत वायलेंट डिमांड्स होती हैं कि जैसे हैंग द रेपिस्ट, और वो करके रेप ख़त्म हो जाएगा जैसे। तो वो इसलिए निकली हैं औरतें कि हम ये पूरा जो सिस्टमेटिक एक जुल्म है, जो पूरा एक सिस्टम के तहत एक सोचा समझा बुनतर माशरे की जिस तरीके से है, जो वो पिद्दर शाहाना है, वो उसका एक नतीजा है। ये जो रेप होता है वो एक नतीजा है उस निज़ाम का जो कि पिद्दर शाही के ऊपर बना हुआ है। ये जो सारा जुल्म है, सख्ती हैं, ये सारी ये जो मतलब इवन मैं कहूँगी कि ये आर्मी का भी जो सारा हिसाब किताब है, सेंसरशिप, ये जो तरीके हैं, ये मैस्कुलिन, अल्ट्रा मैस्कुलिन, हाइपर मैस्कुलिन, और ये अकल से आरी तरीके हैं। तो इसमें इसके लिए हम निकले हैं, पूरे सिस्टमेटिक चेंज के लिए निकले हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी, औरतें निकलें तो आप देखें कि मर्द भी हैं, लेकिन मर्द तो हैं, लेकिन ना पता नहीं मर्दों के होने से स्पेस में ना थोड़ी कोई मतलब वो थोड़ी अनसेफ लगने लग जाती है सिर्फ उनकी मौजूदगी से। जैसे भी हम नारे लगा रहे थे तो हमें बार बार कहना पड़ रहा था कि आप घेरा जो है इतना तंग ना करें, हमें घुटन आपकी साथ से आपके कैसे हमें घुटन फील हो सकती है, और वो हो रही है और वो होती है। तो ये हम इस मुआशरे के ख़िलाफ़ भी निकले हैं जिसमें साथ देने वाले मर्दों से भी हम घुटन ज़दा हैं, और उनको कह रहे हैं कि थोड़ा सा साइड पे होके 2 मिनट सुन लें, आपके पास कान नहीं है, ज़ुबान नहीं है। इस वक्त जो हो रहा है औरत के साथ औरत बयान कर सकती है, और उसके अंदर ही क्लास के जो मसाइल हैं, उसके अंदर ही आइडेंटिटीज़ के जो मसाइल हैं, उसके अंदर ही वो सारी जो आप लोगों ने तकसीमें एक कैपिटलिस्टिक, एक पेट्रियार्कल माइंड से आपने वो इनकलकेट की हुई हैं, वो सारी आसान हो सकती हैं, आप चलने दें बात। अच्छा, जो CCPO का इस पर बयान आया, उनकी जानिब से जो उसे कंडेम किया जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक सिस्टम की निशानदेही कर रहा है। अगर वो रेपिस्ट वो लोग थे तो कैसे रेप एक सिस्टमेटिक चीज़ है, वो हमें इसी से पता चलता है कि ये हमारे मुहाफ़िज़ क्या होंगे कि जब हमें खुद ये विक्टिम ब्लेम कर रहे हैं और हमें इनके ख़िलाफ़ निकलना पड़ा और इनका बयान हमें कहना पड़ रहा है कि इस्तीफ़ा दे दें। तो ये सिस्टम है पूरा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, यंगस्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर आज जो औरत मार्च के हवाले से जो एक वाक़या पेश है? बहुत शुक्रिया, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।